بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سائلنٹ لیٹرز، ساکن حروف، جسے ساکت حروف بھی کہتے ہیں۔ اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہیں پر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا، کومنٹس کر دیجئے گا، کومنٹس میں بھی پوچھیں گے پھر بھی آنسر کروں گا، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائلنٹ لیٹرز، سائلنٹ لیٹرز کو اردو ہم کہتے ہیں ساکن حروف یا ساکت حروف۔ سائلنٹ لیٹرز، ساکن حروف، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایسے حروف جو لکھے تو جائے مگر پڑھے نہ جائیں، جنہیں ہم لکھتے ہیں جب ہم نے کوئی بھی لفظ لکھنا ہوتا ہے اسے الفاظ میں ہم لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، پروناؤنس نہیں کرتے، ان کی آواز نہیں نکالتے۔ ایسے حروف جو الفاظ کا تلفظ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ادا نہ کیے جائیں، ساکن حروف سائلنٹ لیٹرز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس بہت سارے ہی کامن سائلنٹ لیٹرز ہیں: رائٹ، آفن، لسن، کام، نو، رائٹ، ٹاک، واٹ، آنیسٹ۔ اب اس میں دیکھیں، پہلے میں ہم نے رائٹ میں ٹی سائلنٹ ہے، آفن میں بھی ٹی سائلنٹ ہے، اور کام میں دیکھیں بی سائلنٹ ہے، نو میں کے سائلنٹ ہے، رائٹ میں جی ایچ سائلنٹ ہے، آنیسٹ میں ایچ سائلنٹ ہے، اور واٹ میں ایچ سائلنٹ ہے۔ اب ہم ان کو ون بائی ون کرتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر میں، تاکہ ایک سیکوینس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پاس کامن سائلنٹ لیٹرز ہیں ان کو کر لیں۔ ہمارے پاس سائلنٹ بی ہے، اگر کسی لفظ کے آخر میں بی ہو اور اس سے پہلے ایم ہو تو بی سائلنٹ ہوگا۔ اب اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں: بوم، ٹام، کلائم، کام، کرم، ڈم۔ دیکھیں، اکثر لوگ بوم میں اور کلائمب میں اس کو کلائمب پڑھتے ہیں، یہاں کلائم ہے چڑھنا، جس کی میننگ ہے چڑھنا، یہ کلائم ہے، اس میں بی سائلنٹ ہے۔ یعنی جو رول ہے ہمارا کہ اگر آخر میں ورڈ کے آخر میں کسی بھی لفظ کے آخر میں بی ہوگا اور اس سے پہلے ایم آئے تو بی سائلنٹ ہو جائے گا۔ بی کا ہمارے پاس ایک اور رول ہے: اگر کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں بی کے بعد ٹی آ جائے، یعنی یہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، تو بی سائلنٹ ہوگا۔ اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں: ڈاؤٹ، اس میں دیکھیں ڈی او یو بی ٹی، اسپیل آؤٹ کریں گے، بی لکھیں گے، لیکن جب پڑھیں گے تو بی کو ہم پڑھیں گے نہیں بلکہ بی کو سائلنٹ کر دیں گے۔ ڈیٹ، قرض، سیٹل، ہلکا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سائلنٹ سی، ساکن سی۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں ایس سی ہو اور ایس سی کے بعد ای اور آئی آ جائے، ای ہو یا آئی آ جائے تو سی ساکن ہو جائے گا، سی سائلنٹ۔ اب اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس کامن ورڈ ہے، ہم اکثر سائنس یوز کرتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، تو اس میں ایس سی آئی این سی ہے۔ اسپیلنگ میں ہم ایس سی لکھیں گے لیکن یہاں پہ سی کیا ہوگا، ایس کے بعد آیا ہے سائلنٹ ہو گیا۔ سین، سینری، سینٹ۔ سی کا ایک اور رول ہے: اگر لفظ کے آخر میں ایس سی ایل ہی ہو تو سی کیا ہوگا، سائلنٹ ہو جائے گا۔ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ مسل، عام طور پر یہ کامن سا ہے، مسل، ایم یو ایس سی ایل ای، پٹھا، عضلہ جسے کیسے پڑھتے ہیں ہم اسے مسلز ہے۔ سی کے بعد ہمارے پاس ڈی ہے۔ ڈی کے کیا ہے، الفاظ میں ڈی سے پہلے واول ہو اور بعد میں جی ہو، یعنی جو بھی لفظ ہوگا اس میں اگر ڈی کہیں پہ آیا ہوا ہے، اس سے پہلے واول ہو اور آخر میں اس کے بعد جو ہے وہ جی ہو تو پھر ڈی سائلنٹ ہو جائے گا۔ اب اس کی لیکن کچھ عام طور پر بولے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں جن میں ڈی ساکن سائلنٹ ہوتا ہے۔ یہ میں نے دو مختلف رول بیان کیے ہیں، جن کو کلر آؤٹ بھی علیحدہ علیحدہ کیا ہے، جس کو آپ کو سمجھاتے بھی علیحدہ ہے۔ دیکھیں، پہلا جو رول ہے جس کو میں نے یلو کلر دیا ہے کہ ڈی سے پہلے واول اور بعد میں جی ہے، تو دیکھیں برج، ڈی سے پہلے آئی آ رہا ہے، ایج ای آ رہا ہے اور ہیج میں بھی ای آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ڈی کے بعد فوراً جی آ رہا ہے تو ڈی سائلنٹ ہو رہا ہے۔ جو دوسرا ہے جس کو میں نے وائٹ کلر دیا ہے، اس کو دیکھیں کہ اس میں جیسے وینسڈے، جو ہمارے ڈیز آف دا ویک اس میں وینسڈے ہے، وینسڈے، بدھ، ہینگ کرچیف، جس کو اکثر لوگ ہینڈ کرچیف کہتے ہیں، ہینڈ کرچیف نہیں، یہ ہینگ کرچیف ہے۔ ڈی یہاں پہ کیا ہے، سائلنٹ ہے۔
उसके बाद ई है हमारे पास। आम तौर पर अल्फाज के आखिर में ई को अदा नहीं किया जाता। ये क्या होता है? इसको अमूमन हम जब वावल लॉन्ग वावल के लिए बोलते हैं, वावल्स की हरूफ इल्लत की तवील आवाज़ देने के लिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास है होप, ड्राइव, इसको क्या है आवाज़ आवाज़ थोड़ी सी लंबी जाती है। गेव, राइट, साइट, बाइट। ई साइलेंट है, ये क्या बना देता है? आवाज़ लॉन्ग वावल बना देता है और हरूफ इल्लत की लंबी आवाज़ दे देता है, जिसको हम तवील आवाज़ भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जी है। अगर किसी लफ्ज़ में जी के बाद एन हो तो जी साकिन होगा। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं साइन, दस्तखत, फौरन, रिज़ाइन, डिज़ाइन, फॉरनर, फेंट। देखें, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये जो नोट दिया गया कि मगर कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं इन पर रूल यही अप्लाई होता है। रूल में बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि जी भी आया हुआ है, उसके बाद एन भी है, लेकिन वहाँ पे हम जी को साइलेंट नहीं करते। जैसे साइन से सिग्नेचर, सिग्नल, रिज़ाइन से रेजिग्नेशन। और एक बात याद रखें, देखिए जितने भी हैं यहाँ जी से पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है। डी के बाद हमारे पास एच है। एच, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में डब्ल्यू एच हो और डब्ल्यू एच के बाद ए ई आई वाई आ जाए, देखिए वावल की बात नहीं हो रही, ए ई आई वाई, वाई हमारे पास वावल तो नहीं है, तो एच सेकंड साइलेंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हील, वाई, विच, वीट, वाइल, वाइट। ये जो मैक्सिमम जो हमारे डब्ल्यू एच फैमिली है, जिसमें हम क्वेश्चंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, वो है। बाकी भी, लेकिन रूल वही है कि डब्ल्यू एच है और डब्ल्यू एच के बाद ए ई और आई वाई हो। इसमें सारे वावल नहीं है, सिर्फ 3 वावल है और एक वाई वावल नहीं है, कंसोनेंट है। तो ये वर्ड्स आपने देख लिए हैं। जब भी हमारे पास ऐसे आएगा तो इसमें हमारे पास एच साइलेंट हो जाएगा। एच के हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ और भी हैं। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एच हो और एच से पहले वावल आए, अब वावल की बात हो रही है, तो एच साकिन साइलेंट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सारा, ये सारा नहीं है, सारा। इसी तरह मासाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिसमें जिसे लोग अक्सर मसीह भी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मसाया। एच का हमारे पास एक और रूल है। बाज़ अल्फाज के शुरू में एच होता है और एच के बाद वावल हरूफ है और इनसे पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं, इस सूरत में एच साकिन होगा। इसके हमारे पास बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आर, ऑनर, ऑनेस्ट, एयर, एयरलॉन्ग और ऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी, आर, ऑनेस्ट, ऑनर, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है, इसलिए हम इससे पहले एन लगाते हैं, एन आर। और रूल है, अगर किसी लफ्ज़ में आर के बाद एच आ जाए तो एच साकिन होगा। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। राइम, रिदम, ये जो हमारे पास पोएम्स होती हैं, इंग्लिश की पोएम्स हैं, छोटे बच्चों को कार्टून्स भी उन्हें जब पढ़ाई जाती हैं तो राइम्स पढ़ाई जाती हैं ताकि वो गा के पढ़ें। जो राइम्स या राइम है, इसमें एच साइलेंट हो रहा है और अक्सर रिदम पढ़ रहे थे, ये रिदम नहीं है, रिदम होता है। एच के इसी तरह हमारे पास एक और रूल है। अगर किसी लफ्ज़ में ई एक्स के बाद एच आ जाए तो एच साकिन साइलेंट होगा। फॉर एग्जांपल इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। एग्जॉट, एग्जीबिशन का माने जो नुमाइशें लगती है, मुख्तलिफ किस्म की नुमाइश लगी होती है, एग्जीबिशन होती है, कभी फूलों की हो रही है, कभी बुक्स की हो रही होती है, कभी वेपन्स की एग्जीबिशन है, नुमाइश कभी कपड़े की भी होती है। तो ये एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन नहीं होता, इसमें भी एच साइलेंट है। इस तरह एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला, हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम कहते हैं एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी थी, थका देने वाला। इसके बाद हमारे पास है जी एच साइलेंट। अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में जी एच हो और जी एच से पहले आई और बाद में टी आ जाए, देखिए दो चीज़ें, जी एच हो, जी एच से पहले आई और बाद में टी आ जाए तो जी एच साइलेंट होगा। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइट, राइट, माइट, लाइट, साइट, नाइट, टाइट, वेट, ब्राइट। बाकी सारी जो है ना वो एक ही साउंड आ रही है, लेकिन जो वेट है हमारे पास वो मुख्तलिफ है, लेकिन उसमें भी रूल यही है कि पहले आई है, फिर जी एच और आखिर में टी है, तो उसमें जी एच हमारे पास साइलेंट हो रहा है। जी एच का एक और रूल है। अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में जी एच हो और जी एच से पहले वावल्स ए ई आई ओ यू, अब यहाँ पे पूरे वावल्स की बात करें, बाद में टी आ जाए तो जी एच साकिन होगा।
फॉट, ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। इसी तरह कैच की सेकंड फॉर्म काट, थिंक की सेकंड फॉर्म थाट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। ये जब हमारे पास आ जाते हैं तो क्या है, हमारे पास फिर भी GH साइलेंट हो जाता है। इसी तरह हाइट है हमारे पास, हाइट देखें, हाइट ऊंचाई, वो भी इसी रूल में फॉलो कर रही है, इसी रूल में फॉलो कर रही है। इसके बाद हमारे पास है GH का एक और रूल। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में GH हो और GH से पहले वावल आ जाए तो GH साकिन हो जाए। वहाँ दरमियान की बात हो रही है, अब यहाँ पे क्या है, आखिर में है। वहाँ पे आई या वावल पहले आ रहे थे और टी आखिर में, अब यहाँ पे आखिर में टी नहीं है, आखिर में GH खुद है, लेकिन उससे पहले वाले हाई ऊंचाई, ऊंचा, थ्रू, थ्रू के रास्ते में, वे वजन करना, तोलना और साई आह भरना। इसके बाद हमारे पास के साइलेंट है। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में के हो और के के बाद एन आ जाए तो के साइलेंट हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नो जानना, नेट, नॉक खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना, नॉल टेला, नॉलेज जिसको अक्सर लोग भूल के कनॉलेज पढ़ रहे होते हैं, ये कनॉलेज नहीं है, नॉलेज है। नोब दरवाजे का दस्ता, नॉट घाट, नी घुटना और नाइफ चाकू। इसके और भी एग्जांपल आप खुद ढूंढ सकते हैं। तो रूल में याद रखना है कि के बाद अगर एन आएगा और ये शुरू में आ जाए तो के साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एल साइलेंट है। इसका रूल है, अगर किसी लफ्ज़ में एल से पहले ए ओ यू हो, देखिए पूरे वावल फिर भी नहीं बताए गए, ए ओ यू, आई और ई का जिक्र नहीं हो रहा, आई और एल के बाद के एम एफ डी इनमें से कोई आ जाए तो एल साइलेंट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें। हाफ, नॉर्मल, आधा, निस्फ, वाक, काम, टाक, वुड, काफ, फोक, शुड, कुड। एम साकिन, साइलेंट एम है। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में एम हो और उसके फ़ौरन बाद एन आ जाए तो एम साइलेंट होगा। इसके हमारे पास एक एग्जांपल है नेमोनिक। देखिए एमोनिक नहीं पढ़ेंगे, नेमोनिक है, हफ्ज़ में मदद देने वाला है। ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ख़ास तौर पर स्टूडेंट से। एन साइलेंट। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एन से पहले एम आ जाए तो एन साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। आटम, देखिए आखिर में एन है लेकिन उससे पहले एम आया हुआ है। कालम, बहान, डैम, ये जो चारों मिसालें आपको दिए गए, इसको गौर से देखें, आखिर में एन है और उससे पहले एम आ रहा है। पी साइलेंट। बहुत से अल्फाज में पी के बाद पी एन यू और पी एस वाई सी एच और वावल के साथ बी आ जाए तो पी साकिन। अब यहाँ पे दो रूल्स को किया है। पहला रूल क्या है कि अगर पी के फ़ौरन बाद एस वाई सी एच आ जाता है या पी एन यू, पी के साथ एन ई यू आ जाता है तो ये क्या होगा, पी साइलेंट होगा। लेकिन कहीं के अगर बी आ जाता है हमारे पास और उसके साथ वावल होता है तो वो भी साइलेंट होगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए साइकियाट्री, साइकियाट्रिस्ट, माहिर नफ्सियात, साइकियाट्रिक, साइकियाट्रिक दिमागी मरीज होते हैं यहाँ पे, दिमागी इलाज। निमोनिया, ये पी एन ई की मिसाल है। कबर्ड, ये बी की मिसाल है। बी के साथ देखिए फ़ौरन क्या आ गया है, साइलेंट वावल आ गया है। और रेस्पबेरी, रस भरी। पी के बाद एस साकिन है। अगर बाज़ अल्फाज में एस के बाद एल और एल के बाद वावल आ जाए तो एस साकिन होगा। लेकिन एस के बाद एल होगा और एल के बाद क्या होगा, वावल आ जाए। तो इसकी हमें मिसाल देते हैं। आई लैंड, अक्सर लोग इज़ लैंड पर होते हैं। आई लैंड जिसको हम जजीरा कहते हैं, इस तरह आई छोटा जजीरा, एल कतारों को बयान वगैरह, और आईलेट अलग थलग मकाम। इसके बाद हमारे पास है टी साकिन। अमूमन कुछ लफाज हैं उनमें टी साइलेंट होता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ जो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए तो मैंने इसलिए इसको हमने क्या किया कि पूरे वर्ड काउंट कर लिए हैं। बहुत सारे जो अल्फाज हैं नॉर्मल जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो यहाँ पे दे दिए ताकि आपको याद रहे और आपके लिए ईजी रहे। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें डेपू, ये डेपोट नहीं है, डेपू, डेपू, ठीक है। उसमें आपको मालखाना, कैसल, महल, फासन, लिसन, ऑफन। ये लिसन और ऑफन हम अक्सर यूज़ करते हैं। ऑफन के मीनिंग भी अक्सर है। विसल, ये जो सीटी बजाते हैं। सॉफ्टवेयर नरम करना। क्रिश्चियन और क्रिसमस, इसमें भी टी आता है लेकिन टी क्या है, साइलेंट है। टी के बाद हमारे पास डब्ल्यू है।
اگر کسی لفظ کے شروع میں ڈبلیو کے بعد آر آ جائے تو ڈبلیو سائلنٹ ہو جائے گا. اب یہ ہمارے پاس ایگزامپلس کے ہم دیکھ لیتے ہیں, بہت ہی کامن ہے. دیکھیں رائٹ ڈبلیو سے شروع ہو رہا ہے لیکن ساؤنڈ کس کی دے رہا ہے, آر کی. رائٹ, ریسٹ, کلائی, ریپ, جو ریپر ہوتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر ہم ریپ کرتے ہیں, ریپر لپیٹتے ہیں. رانگ غلط, ریچ بدنصیب, رنکل, رین, ریک, ریسلنگ, ریسلنگ کشتی ہوتی ہے. دیکھیں سارے شروع ڈبلیو سے ہو رہے ہیں لیکن ان کے فوراً بعد آر آیا ہے تو اس کی وجہ سے ڈبلیو کیا ہے, سائلنٹ ہو گیا, ہمارے پاس ساکت ہے. ڈبلیو کا ہمارے پاس ایک اور رول ہے وہ جو ہم نے ایچ میں بھی پڑھا تھا لیکن وہاں مجھ میں تھوڑا فرق ہے, کنفیوز نہیں ہونا. اگر لفظ کے شروع میں ڈبلیو ایچ ہے اور ڈبلیو ایچ کے بعد او ہو تو ڈبلیو ساکن ہوگا. اب اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ہو, اب یہ ڈبلیو ایچ فیملی میں وہاں ہے لیکن وہاں پہ واول تھا, یہاں پہ او آ رہا ہے. ہم نے اے ای آئی او وائی کیا تھا. ہو کون, ہوز, ہوم, ہول, یعنی ڈبلیو ایچ کے بعد او جب آئے گا تو اب یہ ایچ کو سائلنٹ کرنے کی بجائے ڈبلیو کو سائلنٹ کر دے گا.